students, today we will read about the emergence of Gandhiji. This is the chapter number 17 and we are studying the national movements. The greatest leader of the Indian people in the new phase of their struggle for freedom was Mohandas Karamchand Gandhi. He entered the Indian politics during the First World War. Gandhiji led the people of India in their struggle for freedom for nearly 30 years. He was popularly known as महात्मा गांधी. कांग्रेस के 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद, जो कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में डिवाइड हो गए थे, उसके बाद गांधी जी जो थे एक बहुत बड़े लीडर के रूप में जनता के सामने आए. उनका फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी था और वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री की. गांधी जी जो थे वो फ्रीडम के लिए लगभग 30 इयर्स तक स्ट्रगल करते रहे और लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं. Early life. He was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. After completing his studies in England, Gandhiji went to South Africa as a lawyer. During his stay in South Africa, he fought against the oppression committed by the white rulers against the non-whites. It was during this period he developed his own method of fighting oppression. It is called Satyagraha. The people resorting to Satyagraha were ready to undergo any hardships and sufferings, even imprisonment. It was basically a non-violent movement of fighting against oppression. गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के इंग्लैंड में कंप्लीट करने के बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका में एक लॉयर के रूप में गए. वहाँ पर जब वो साउथ अफ्रीका में रुके हुए थे तो वहाँ पर उन्होंने महसूस किया कि वहाँ पर ब्लैक और वाइट के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है और फिर उन्होंने अपना एक फाइटिंग करने का नया तरीका ढूंढा, उसे सत्याग्रह का नाम दिया. जो भी व्यक्ति सत्याग्रह करता है या करता था वह किसी भी तरह की परेशानी को झेलने के लिए तैयार रहता था, यहाँ तक कि जेल भी जाने के लिए तैयार रहता था और इसे बेसिकली नॉन वायलेंट मूवमेंट नाम दिया गया, जो कि अत्याचार के खिलाफ मूवमेंट था. चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा मूवमेंट्स. At the start of 1917 and 1918, Gandhiji led 3 movements in Champaran, Ahmedabad and Kheda. These movements were for the local economic demands. In the beginning of 19th century, the white rulers made a pact with the peasants which made it mandatory for the peasants to cultivate indigo plants on 1/3 of their land. This was called Tinkatiya system. The British oppressed the Indian indigo plants in Champaran. In 1917, Gandhiji went to Champaran to relieve the peasants of this oppression. This was ordered to leave Champaran but defied the British orders. He forced the government to inquire into the injustice committed against the indigo planters and to put an end this oppression. In 1918, he helped the textile workers of Ahmedabad and peasants of Kheda to get justice. The textile workers were demanding a rise in their wages and the peasants of Kheda, due to crop failure, were against the collection of revenue. The movements of Champaran, Ahmedabad and Kheda provided opportunity to test the methods of Gandhiji and brought him more closer to the people of India. गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में 3 मूवमेंट्स को लीड किया और ये जो मूवमेंट्स थे लोकल इकोनॉमिक डिमांड्स के लिए थे. इसमें जो वाइट रूलर थे वो किसानों को मजबूर करते थे कि वो 1/3 पार्ट में अपनी ज़मीन में इंडिगो प्लांट्स को उगाएं, नील की खेती करें और यह सिस्टम जो था वो कथिया सिस्टम कहलाता था. तो ब्रिटिश जो थे वो इसके लिए किसानों को बहुत ज़्यादा दबाते थे, उनके साथ अत्याचार करते थे. 1917 में गांधी जी चंपारण गए और उन्होंने किसानों को इस ऑपरेशन से मुक्ति दिलाई. उनको ऑर्डर दिया गया कि वो चंपारण छोड़ दें, पर उन्होंने वो नहीं माना. उन्होंने गवर्नमेंट के सामने ये मांग रखी कि इस तरह का जो इनजस्टिस जो इंडिगो प्लांटर्स के साथ हो रहा है वो ना किया जाए. 1918 में फिर उन्होंने अहमदाबाद में टेक्सटाइल वर्कर की हेल्प की और इसी तरह से उन्होंने खेड़ा में भी जस्टिस के लिए लड़ाई की.
टेक्सटाइल वर्कर्स जो थे वो अपना जो उनकी मेहनताना था उसको बढ़ाने की डिमांड कर रहे थे, और खेड़ा के जो किसान थे उनकी जो क्रॉप थी वो फेल हो गई थी, और उनकी जो फसल थी वो उस वक्त ख़राब हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, और उनको उतना ही जो टैक्स था वो पे करना पड़ रहा था। तो किसानों ने उनकी तरफ जो गांधी जी थे उन्होंने किसानों की तरफ से अपनी बात रखी और उनकी मांगों को गवर्नमेंट के सामने रखा। इस तरह से गांधी जी ने जो शांतिपूर्वक जो आंदोलन किए वह लोगों को उनके और करीब ले आया और उन्हें फेमस कर दिया। सोशल रिफॉर्म्स। गांधी जी मेड द सोशल रिफॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशनलिस्ट movement. In the field of social reforms, he devoted himself to the fight against the inhuman practices of untouchability. Millions of Indians led lives of humiliating degradation because they were considered as untouchables. His another major contribution was in the field of cottage industry. He told the people that charkha, symbol of this emphasis on village industries, which generated employment. He devoted his life for the unity of Hindu-Muslim. He considered communalism as anti-national and inhuman. He made efforts to attain freedom following the path of truth and non-violence. गांधी जी ने स्वयं छुआछूत का भेदभाव झेला हुआ था, और इसलिए उन्होंने इसके लिए समाज को जागरूक किया कि ये अनटचेबिलिटी जो है ये इनह्यूमन है और इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो थे वो अनटचेबल थे और वो भी इस तरह की त्रासदी झेल रहे थे, इसलिए वो गांधी जी के फॉलोवर हुए। इसके बाद गांधी जी ने और भी बहुत सारे चीज़ों में कंट्रीब्यूशन किया, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो हिंदू मुस्लिम एकता हो, हर तरफ उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और देश को एक करने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया और इसके कारण वो जो उनके जो आंदोलन थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए और वो सक्सेस भी हुए। Children, you have to read the chapter deeply and carefully. In the next video, we will read about the Home Rule movement.